Hi everyone. So we are given with a question which says during an experiment with a meter bridge, a galvanometer shows a null point when the jockey is pressed at 40 centimeter using standard resistance of 90 ohm as shown in the figure. The least count of the scale used in the meter bridge is 1 mm. So it can measure up to the least value of 1 mm. The unknown resistance is, so we need to calculate the unknown resistance in terms of errors as we can see it in the option. So first let's try to understand what exactly is the meter bridge. So meter bridge first of all works on the principle of Wheatstone bridge, and its name is derived from the term meter, that is the length of wire used here is 1 meter. So let's say at this point, let's suppose this point is P, and at this point while touching the jockey, we the galvanometer is showing null deflection. So if this is 40 centimeters, so this distance will be 60 centimeter. All right. So let's say this is our length of right side and this is our length of left side. So under balance condition, we can write under balanced condition. It can be written as under balanced condition means when the galvanometer is showing null deflection. So in that case, we can write R by 90 will be equals to LL by LR. Alright, so from here we can say LL is been given as 40 centimeter divided by LR is given 60 centimeter into 90. So that will give us the value of unknown resistance capital R. Alright, so this comes out to be this will be uh, this value comes out to be 60 ohms. Alright, so this is the value of unknown resistance. So from option, if we carefully analyze among option A and option C, one is the correct answer. So directly we can discard B and D option. Alright, since the resistance value is 60 ohms, so this value we have calculated. So for that, we can write, let's take it over here. So from the formula we can, if we carefully look at the formula was R by 90, and that is equals to LL by LR, or this can be written as LL by 100 minus LL. Alright, since the length, total length is 100, so we can write LR as 100 minus LL. So from here we can say, in terms of relative error, we can write this equation as delta R by R. That would be equals to, this can be written as delta LL by LL, and here it would be plus of delta 100 minus LL by 100 minus LL. Alright, this can be further written as delta R by R is been, we have calculated it as 60, delta LL, that is the least count of the scale, and that has been given as 1 mm. So in terms of centimeter, it can be written as 0.1 divided by LL is 40, and plus here again 100 cannot be taken considered, so again delta L, that is 0.1 divided by 60. So we can write it further, delta R can be given as, this can be written as 10 upon 40 into 60 into 60, and that gives us the value as 1 by 4, and that is 0.25 ohms. Alright, so this is the value of error in resistance we are getting. Therefore, we can say R plus of minus delta R in terms of error we are writing can be written as 60 plus of minus 0.25 ohms. Alright, so this is the right answer to this question, which matches with option C.
So I hope you have understood the concept well, and thank you for watching. यहाँ पे बोल रहा है कि ये मीटर ब्रिज इज सेटअप इन सो इन द फिगर। डैट मीन्स जो मीटर ब्रिज का जो सेटअप है हमको डायग्राम में गिवन है, एंड द लेफ्ट गैप में जो है एक्स यहाँ पे रजिस्टर एडेड है जो अननोन है, एंड इस डायग्राम में जो जो राइट में है वो 10 ओम का रजिस्टर यहाँ पे स्टैंडर्ड रजिस्टर कनेक्ट है जो हमको इस डायग्राम में गिवन है। एंड बोल रहा है कि जो गैल्वेनोमीटर है वो नल शो करता है व्हेन टैपिंग द की एट द 52 cm मार्क। डैट मीन्स मान लेते हैं कि टोटल लेंथ ए बी का है 100 सेंटीमीटर, तो उनमें से बोल रहा है कि 52 cm पे जो गैल्वेनोमीटर है वो नल शो करता है, नल डिफ्लेक्शन शो करता है। एंड बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि द एंड करेक्शन आर 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली फॉर द एंड ए एंड बी। तो यहाँ पे बोला है x का वैल्यू कितना होगा फाइंड करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सिंपल सबसे पहले हमको क्या गिवन है, तो हमको पता है कि द कंसेप्ट ऑफ द बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज जो होता है डैट मीन्स यहाँ मान लेते हैं x है, एंड यहाँ x है, यहाँ पे 10 है, और यहाँ मान लेते हैं कि कितना डिस्टेंस पे बोला है L1 इक्वल टू 52 cm। तो हमको पता है कि जो बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज जो होता है तो उस केस में हम यहाँ पे लिख देते हैं बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज। हमको क्या पता है कि P बाई क्यू जो होता है कितना होता है R बाई एस के इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पे x गिवन है एंड x डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना है 32 प्लस 1, 32 प्लस 1 इक्वल टू कितना है 10 है, 10 ओम डिवाइडेड बाई कितना 48 प्लस 2, अरे सॉरी 52 में से 1 cm बोला है, कितना बोला है एंड करेक्शन 1 cm एंड 2 cm, तो 51 हुआ, सॉरी यहाँ से 51 हुआ, यहाँ से क्या लिख सकते हैं 52 प्लस 1 एंड कितना 48 प्लस 2। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इन द क्या बोला है कि इन द एंड करेक्शन में 1 cm एंड 2 cm फ्रॉम एंड ए से बोल रहा है कितना 1 cm एंड बी से बोल रहा है 2 cm जो क्या है करेक्शन है, तो डैट मीन्स करेक्शन है, डैट मीन्स प्लस 52 प्लस 1 एंड यहाँ पे 48 प्लस 2 लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ से अगर x देखे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 इंटू 53 डिवाइडेड बाई 50। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 10.6 ओम, डैट मीन्स ये हमारा आंसर हुआ। तो इनमें हमको 4 ऑप्शन गिवन है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन कह रहा है कि टू वेरीफाई ओम्स लॉ, हमें क्वेश्चन में ओम्स लॉ को वेरीफाई करना है। ए स्टूडेंट इज प्रोवाइडेड विथ ए टेस्ट रेसिस्टर RT। एक स्टूडेंट को ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन के लिए एक रेसिस्टेंस RT दिया गया है, ए हाई रेसिस्टेंस R1 और एक बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस बड़ा रेसिस्टेंस R1 दिया गया है, ए स्मॉल रेसिस्टेंस R2 और एक बहुत छोटा रेसिस्टर दिया गया है R2, 2 आइडेंटिकल गैल्वेनोमीटर्स G1 एंड G2 और 2 आइडेंटिकल गैल्वेनोमीटर्स है दिया गया है G1 और G2, उन दोनों का नाम है, एंड ए वेरिएबल वोल्टेज सोर्स और एक वेरिएबल वोल्टेज सोर्स हमें दिया गया है, उस बच्चे को एक्चुअली में दिया गया है। द करेक्ट सर्किट टू कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट इज, तो हमें इन ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा सर्किट करेक्ट है ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन के एक्सपेरिमेंट के लिए। मैं चारों ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके सारे सर्किट्स को एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन में हम लोग वोल्टेज को मेजर करते हैं किसी रेसिस्टर के थ्रू, और फिर उस रेसिस्टर के थ्रू जो करंट पास कर रहा है उसको मेजर करते हैं, और ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगाते हैं V इक्वल टू IR। इसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, जो सेटअप है वो इम्पॉर्टेंट है। हम लोग जब भी वोल्टेज डिफरेंस मेजर करते हैं उस रेसिस्टर के थ्रू तो वो वोल्ट मीटर से करते हैं, और वोल्ट मीटर को हम लोग रेसिस्टर के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं।
वैसे ही करंट को हम लोग किससे मेजर करते हैं? एमीटर से, और एमीटर को हम लोग इस रेसिस्टर के बिल्कुल सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो हम फिर ओम्स लॉ का ये फॉर्मूला जो होता है वो लगा पाते हैं, वो एप्लीकेबल होता है। बस हम लोग को जो करना है इस क्वेश्चन में वो सेटअप को चेक करना है। तो सेटअप में हमें वोल्ट मीटर और एमीटर कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन गैल्वेनोमीटर से हम लोग जानते हैं कि वोल्ट मीटर और एमीटर को हम लोग बना सकते हैं। तो मैं दिखाता हूँ क्या कंस्ट्रक्शन होता है एमीटर का। एमीटर का कंस्ट्रक्शन में एक गैल्वेनोमीटर होता है, उसको हम लोग अटैच करते हैं एक बहुत ही छोटे रेसिस्टर से, जिसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है। ये गैल्वेनोमीटर है। ये जो पार्ट हुआ ये ओवरऑल एमीटर कहलाता है। वैसे ही वोल्ट मीटर का क्या है? वोल्ट मीटर में जो है हम लोग यहाँ पे पैरेलल में जो ना कनेक्ट कर रहे थे रेसिस्टेंस को, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को, यहाँ पे वोल्ट मीटर में हम लोग गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं एक काफ़ी बड़े रेसिस्टर को। तो फिर ये पूरा कंबाइनली ये पोर्शन जो होता है वो वोल्ट मीटर कहलाता है। ठीक है, ये वैल्यू काफ़ी बड़ी होनी चाहिए और ये जो रेसिस्टेंस है वो काफ़ी छोटी होनी चाहिए। तो अब क्वेश्चन में आप देखो, क्वेश्चन में आपको दो रेसिस्टर एक्स्ट्रा दिया हुआ है, एक है R1 और एक है R2। R1 के बारे में क्या दिया हुआ है कि R1 काफ़ी बड़ा रेसिस्टर है जिसकी रेसिस्टेंस वैल्यू काफ़ी हाई है, लेकिन R2 की वैल्यू जो है काफ़ी छोटी है। तो हम लोग को सुटेबल, एमीटर के लिए सुटेबल कौन सा रेसिस्टेंस होगा? एमीटर के लिए सुटेबल R2 रेसिस्टेंस होगा। और वोल्ट मीटर के लिए कौन सा रेसिस्टर सुटेबल होगा? R1। R1 हमारा वोल्ट मीटर के लिए सुटेबल होगा। तो अब इस नेटवर्क में देखो, अब पहला ऑप्शन में ये जो गैल्वेनोमीटर है उसको R2 से कनेक्ट किया गया है पैरेलल में। तो ये वाला चीज़ जो है वो एमीटर का काम करेगा। ये आप कॉन्फ़िगरेशन देख लो। तो ये एमीटर को जो है इस रेसिस्टर RT के पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, जबकि ये जो गैल्वेनोमीटर का काम कर रहा है ये वाला पार्ट, ये वोल्टमीटर का काम कर रहा है। तो ये क्या हुआ कि हम लोग इसको RT से सीरीज में कनेक्ट कर दिए, तो ये तो गलत हो गया। हम लोग रेसिस्टेंस के सीरीज में एमीटर को कनेक्ट करते हैं और पैरेलल में वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे तो गड़बड़ है, यहाँ पे कनेक्शन उल्टा हो गया। वोल्ट मीटर पैरेलल में होना चाहिए था और एमीटर सीरीज में होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ये है हमारा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में क्या किया है, R1 जो कि एक काफ़ी बड़ा रेसिस्टेंस है उसको कनेक्ट किया है गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में। तो ये कंस्ट्रक्शन एक्चुअली में ना तो एमीटर का है ना तो वोल्ट मीटर का है, तो ये तो बिल्कुल गलत कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे आप देखो R2 को कनेक्ट किया गया है गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में, ये भी ना तो वोल्ट मीटर का कंस्ट्रक्शन है ना तो एमीटर का। तो हम लोग आखिर मेजर कैसे करेंगे इसके बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप है और इसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है, वो हम लोग अप्रोप्रिएटली मेजर नहीं कर पाएंगे। अब सी ऑप्शन में देखते हैं। सी ऑप्शन में R1 को कनेक्ट किया गया है गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में, तो ये कंस्ट्रक्शन जो है ये हमारा वोल्ट मीटर का काम करेगा परफेक्टली। ये हमारा वोल्ट मीटर हुआ। अब R2 जो कि काफ़ी छोटा रेसिस्टेंस था उसको गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया गया। इसका मतलब ये वाला जो चीज़ है वो एमीटर, परफेक्ट एमीटर का रोल प्ले करेगा। इसका मतलब हमारे पास एक वोल्ट मीटर भी है, एक एमीटर भी है। अब हम लोग इस रेसिस्टेंस के थ्रू वोल्टेज और करंट मेजर कैसे करेंगे, तो वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे पैरेलल में ही कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे वोल्ट मीटर को एमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, और एक्चुअली में भी हम लोग सीरीज में ही कनेक्ट करते हैं, तो ये कनेक्शन भी सही है। इसका मतलब सी ऑप्शन सही है। हम लोग RT के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी मेजर कर पाएंगे प्रॉपरली, और उसके थ्रू जो करंट पास कर रहा है उसको भी मेजर कर पाएंगे। तो अब हम चलते हैं डी ऑप्शन की ओर। डी ऑप्शन में क्या है, डी ऑप्शन में फिर से गड़बड़ है। आप गौर करो, यहाँ पे
ये ऑप्शन में R2 जो रेसिस्टर है वो गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। अब ये जब सीरीज में कनेक्टेड है तो ये वाला पार्ट वोल्टमीटर तो हो नहीं पाएगा, ना तो ये पार्ट अमीटर हो पाएगा, क्योंकि R2 का वैल्यू काफ़ी छोटा था। अब G2 के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया है R1 को, जो कि काफ़ी बड़ी रेसिस्टेंस है, तो ये वाली वैल्यू भी ना तो एमीटर हो पाएगी ना तो वोल्टमीटर का काम कर पाएगी। इसका मतलब कि हम लोग RT का जो वैल्यू है उसके थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप और करंट प्रॉपरली मेजर नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? सी।